Unit 6, Exercise 6.2 of General Mathematics Class 10. Question number 3. Find the transpose of the following matrices. یعنی درج ذیل کالموں کے ٹرانسپوز معلوم کرنے ہیں. تو ٹرانسپوز کیسے معلوم کرتے ہیں؟ ٹرانسپوز میں یہ ہے کہ جو رو ہے ہمارے پاس، یہ اس رو کو پکڑ کے ہم کالم بنا دیتے ہیں. یعنی اے کا ٹرانسپوز اگر لیں تو پہلی رو کو پکڑا اور پہلا کالم بنا دیا. اسی طرح سے سیکنڈ رو جو ہے، یہ اس رو کو پکڑیں تو سیکنڈ کالم بنا لیں. تو یہ آپ کا ٹرانسپوز ہو گیا جی. اور یہ آپ کا آنسر ہو گیا. اور اگر آپ رو کے حساب سے نہیں چلنا چاہتے تو پھر پہلا کالم پکڑ لیں، یہ، اور اسے پکڑ کے یوں یہاں سے یوں پہلا کالم پکڑا اور اسے پکڑ کے یوں پہلی رو بنا دیا. اور پھر یہ دوسرا کالم پکڑا اور اسے پکڑ کے دوسری رو بنا دیا. تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کے پاس سیم ہی آنسر آئے گا. یعنی پہلا کالم پکڑا، اس کو ایرو یوں ہے، ایسے آپ نے کالم پکڑا لیکن اس کو آپ نے یوں سیدھا کر دینا ہے. اسی طرح سے دوسرا آپ نے کالم پکڑا ہے تو اس کو بھی سیدھا یوں کر دیں گے تو دوسری رو بن جائے گی. تو چاہے کالم کو پکڑ کے رو بنا لیں یا پھر رو کو پکڑ کے کالم بنا لیں، لیکن کام ایک ہی کرنا ہے. دونوں کام نہیں کرنے، بیکاز دونوں کام سے پھر آپ سیم پوزیشن پہ دوبارہ آ جائیں گے. تو یہ تھا جی ہمارا فرسٹ میٹرکس جو دیا ہوا تھا. اب سیکنڈ میٹرکس پہ چلتے ہیں. سیکنڈ میٹرکس ہے میرے پاس بی ہے -3 -2 -1 اور 4. اب اس کا ٹرانسپوز لینا ہے. بی کا ٹرانسپوز لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی فرسٹ رو کو پکڑ کے ہم فرسٹ کالم بنا لیتے ہیں، اور اس کی سیکنڈ رو کو پکڑتے ہیں اور سیکنڈ کالم بنا لیتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ ہمارا آنسر آ گیا. اب اسی طرح سے نیکسٹ میرے پاس میٹرکس ہے سی. میٹرکس میں میرے پاس اے -بی سی اینڈ ڈی دیا ہوا ہے. تو اب بتائیے جی کیسے اس کا آپ بنائیں گے ٹرانسپوز. ہاؤ ٹو ٹیک دا ٹرانسپوز آف دس ون. جی کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی آپ چاہیں تو اس کے کالمز کو پکڑ کے روز بنا لیں، یا پھر آپ اس کی روز کو پکڑ کے کالمز بنا لیں. فار ایگزامپل یہ ہے اس کا کالم، اس کو آپ نے یوں سیدھا کر دینا ہے. تو یعنی اے اور سی یوں لکھا ہوا تو اے اور سی یوں ہو جائے گا. یہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے اس کے سیکنڈ کالم کو ایسے ہی پکڑیں اور ایسے سیدھا کر دیں. تو یہ آپ کے پاس اس کا ٹرانسپوز آ گیا کہ روز کو پکڑا آپ نے اور کالم بنا لیا. اوکے. اب لاسٹ ہے اس کا ڈی پارٹ. تو ڈی میں دیا ہوا جی ایل ایم اور این
P Q R A B and C. इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो D का ट्रांसपोज लें। क्या करेंगे आप? What would you like to do here? आप चाहें तो पहली रो को पकड़ के पहला कॉलम बना लें, L M और N। दूसरी रो को पकड़ें तो दूसरा कॉलम बना लें, P Q और R। और तीसरी रो को पकड़ के आप तीसरा कॉलम बना लें, A B and C। तो ये आपका ट्रांसपोज निकला है। आप इसके अलावा दूसरे तरीके से भी चल सकते थे। अब इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। आप चाहें तो कॉलम को पकड़ के भी रो बना सकते हैं, यानी कि पहले कॉलम को पकड़ा ऐसे, पहले कॉलम को पकड़ा और पहली रो बना दिया, यानी कि ये बन जाएगा LPA। तो ये देख लें LPA, ये पहली आपकी रो बन गई। MQB, ये आपका MQB, ये सेकंड रो बन जाती है। और इसी तरह से NRC, तो NRC आपकी थर्ड रो बन जाती है। तो किसी भी तरीके से आप चलें, यू विल एंड अप एट द सेम प्लेस। तो लेकिन ये है कि एक ही तरीका आपने करना है, दो दो नहीं करने, इकट्ठे नहीं करने। यानी अगर आप रोज़ को पकड़ के कॉलम बना रहे हैं तो फिर भी ठीक है, और अगर आप कॉलम्स को पकड़ के रोज़ बना रहे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन दोनों ही नहीं कर देने। ये नहीं कि अभी एक दफ़ा रोज़ को पकड़ा और कॉलम बना लिया, फिर दोबारा से कॉलम्स को पकड़ के फिर रोज़ बना लें। यानी एक मेथड यूज़ करेंगे तो आंसर ठीक रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आइडेंटिफाई करने हैं सिर्फ रो मैट्रिसेस कि भाई रो मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो रो मैट्रिसेस में मुझे जो नज़र आ रहा है A और C, A और C में जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं उनमें सिर्फ एक ही रो है, तो इसलिए A एंड C माई आंसर शुड बी माई आंसर। यानी ये रो मैट्रिसेस सिर्फ दो ही हैं, बाकी तो कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। जी क्वेश्चन नंबर 5 में हमने आइडेंटिफाई करने हैं ऑल कॉलम मैट्रिसेस, यानी ऐसे मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो A में देख लें एक ही कॉलम है, C में एक ही कॉलम है, E में भी एक कॉलम है। तो मेरे आंसर में फिर A, C और E बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने कॉलम मैट्रिक्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो कॉलम मैट्रिक्स मुझे सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, वो है C। तो आंसर हमारा फिर मतलब कि C हुआ। C मैट्रिक्स इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, बाकी सब में एक कॉलम से ज़्यादा ही हैं, तो जिसमें एक ही कॉलम बन रहा है वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आइडेंटिफाई ऑल 3x3 स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज़ हों और 3 ही कॉलम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A में 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो A इज़ आवर आंसर। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जा सकता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे कि मैट्रिसेस में हम किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें।
اور اس طرح سے ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیے. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe the Imran Academy for more lectures in the future. Till the next lecture, it's goodbye.